See, next is, again I'm telling you, this topic is very easy. Only one method is there. वो method भी question का discuss करेंगे, फिर many questions will discuss on that. Then we'll move to some other theory part. And in the last class, what we derived, Kc equal to C raised to C, product coefficient, product concentration raised to coefficients upon the reactant concentration raised to coefficient. C raised to C, D raised to D, A raised to A, B raised to B. Same thing if I do for a reaction involving gases in terms of concentration. We have written the equilibrium constant Kc equal to that. We can write Kp. C means concentration, P means pressure. In the place of concentration, you will get a pressure term here. Case of gaseous phase reaction or equilibrium, consider a gas phase reaction. Definitely should be reversible. Both sides can take place. For gas phase reaction, equilibrium constant can be written in terms of partial pressure. So simply in place of concentration term, you have to write pressure term. From here you can start writing Kp is equal to Pc raised to C, Pd raised to D, Pa raised to A, Pb raised to B. Where Pa is got partial pressure of gas A, Pb partial pressure of gas B, Pc partial pressure of gas C, and Pd partial pressure of gas D. You know that partial pressure is just individual pressure in a mixture of gases. What is partial pressure? Individual pressure. It means if one gas is present in a container, the pressure is applied by the gas, particular gas, will be same if you keep mixture of gases. And total pressure will be what? Summation. What is the relation between partial and total? Partial pressure is equal to total pressure into mole fraction of gas. R is having what? This value. Partial pressure unit must be atm or bar. We cannot use other thing. Active mass. Active mass, molarity and partial pressure दोनों ले सकते हैं. Active mass is molarity upon 1 molar. Active mass can be taken as partial pressure upon 1 bar. Partial pressure is always taken in terms of atm or bar. So these are unitless. So it means what? In place of partial pressure, you should have active mass, that is unitless quantity. But so Kp should be also what? Unitless. But in the problem, if Kp has some units, so they didn't take active mass, they have just taken what? Partial pressure. The formula should be in terms of active mass, but in problem solving, if they give units of pressure, it means they didn't take active mass, they have taken what? Actual pressure. But active mass is nothing but partial pressure when divided by 1 bar or 1 atm to make it unitless quantity. It does not change the value of partial pressure. If partial pressure is 2 atm, active mass will be 2 atm upon 1 atm, atm cancel 2. So in equilibrium constant term also, there should be actually active mass, but you will find it is given in terms of units. It means they are not using active mass, they have used it for pressure or concentration. Please write till here. मैं जहां तक लिखने के लिए कहूंगा उतना लिख लीजिए फटाफट, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे. क्विक. तो Kc is C raised to C, D raised to D, A raised to A, B raised to B. Kp, Pc raised to C, Pd raised to D, Pa raised to A, Pb raised to B. So there are two formulas till now. Both are similar. Again, you will find similar formula will be there. Please write it quick. The most important thing while writing Kp, the pressure should be always atm or bar.
And please, Nitin, tell me if you are done. Yes, sir. Done, sir. So KC we learned, KP we learned. We'll move to some other results. Again, I'm repeating, KC and KP should be written in terms of active mass, but you will find they're written in concentration or pressure. If you write in terms of active mass, there should not be any unit. But if it is written in terms of concentration or pressure, exactly it must be having what unit. जिसका हो गया है प्रूव करिए, प्रूव दैट Kp equal to Kc into RT raised to delta Ng, where delta Ng is C plus D minus A plus B for the same reaction, A plus B giving CC and D. You can find C and D is what? Coefficients. What is small a small b? Coefficients of reactants. Small c small d coefficients of product gases. जो gases है. Partial pressure of gas का ही ले सकते हैं. जिसका हो गया है, प्लीज प्रूव दिस क्विक. प्रूव भी 5 मिनट का 2-3 मिनट का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं लगना. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना. हाँ, और थोड़ा ऊपर. नहीं सर इतने.
Anyone has the proof? Kp equal to Kc RT raised to delta Ng, and delta Ng is equal to what? C plus D minus A plus B. You have to utilize, you can take PV equal to RT, you can utilize. Are you done, beta? हो गया? Yes, sir. Proof हो गया? नहीं sir, वो कर रही हूँ.
Anyone got the proof? देखिए, if it is ideal gas equation, it should be PV equal to RT. Using PV equal to RT, what we can write? Pressure equal to N by V into RT. Now, what is N by V? Moles. N is moles, V is volume. So moles upon volume becomes what? Molarity or concentration. So we have written C is molarity or concentration or square bracket. Square bracket denotes what? Molarity of A. Molarity of any component. So PA means what? Pressure of A, या partial pressure of A in the mixture equal to Na upon B. PA is the pressure of A and PA is as well as partial pressure of A. When it is alone, we call it pressure of A. When it is in mixture, we call it partial pressure of A. So PA should be equal to Na upon V into RT. Na upon V is what? Concentration of A. So PV should be similar, PC should be similar, PD should be similar. If you put all these terms in Kp expression, you will have PC raised to C, PD raised to D, PA raised to A, PV raised to B, CRT, DRT, ART and BRT. RT will be taken out. C raised to C, D raised to D, A raised to A, B raised to B. Or it becomes what? Kc. And RT raised to C plus D minus A plus B. Again, we can take only PV equal to RT for gases. So Kp should be equal to Kc into RT raised to delta Ng. Where delta Ng is equal to what? C plus D minus A plus B. Kp and Kc can't be 0. So if delta Ng is 0, then Kp becomes Kc. अगर delta Ng 0 हो जाएगा तो RT raised to 0 क्या हो जाएगा? 1. If delta Ng is not equal to 0 and Kp equal to Kc, तो 1 equal to क्या हो जाएगा? RT raised to delta Ng, and RT should be what? Equal to 1. अगर डेल्टा G 0 नहीं है तब एंड Kp इक्वल टू Kc है, Kp इक्वल टू Kc है, तो तभी पॉसिबल है जब Rt की वैल्यू क्या हो? 1 हो और T की वैल्यू क्या हो? 1 by R हो और R की वैल्यू क्या होती है? 0.0821 और 1 by 12, that is 12 Kelvin. For Kc expression, liquid solution phase and gaseous phase are allowed. मतलब Kc में क्या ले सकते हैं? Concentration term ले सकते हैं. Liquid solution के मतलब क्या हुआ? We have to take concentration, you can take. Or gaseous phase, you can take what? Partial pressure as well as concentration. गैस के लिए हम दोनों ले सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के लिए हम लोग प्रेशर नहीं ले सकते. For Kp expression, only gaseous phase is allowed. Liquid and solid phase are ignored. That is, concentration of pure solid and pure liquid is taken as 1, or partial pressure will be taken as 1. In Kc और Kp expression, solid के लिए हम लोग क्या ले लिए? 1 ले लिए. Pure liquid के लिए 1 ले लिए. Exception, formation of ester using carboxylic acid and alcohol. ये हम बताएंगे आपको. तो Kp और Kc में किसको 1 लेना है? प्योर सॉलिड को 1 लेना है, प्योर लिक्विड को 1 लेना है. Kp में सिर्फ प्रेशर आता है, कोई और टर्म नहीं आते. नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन कोशेंट. फिर से देखिए, कुछ नया टर्म नहीं आने वाला. The concentration ratio or partial pressure ratio, each raised to the stoichiometric coefficient present in the balanced reaction at any stage is known as, at any stage, it is not at equilibrium. ऊपर के टर्म्स Kp और Kc क्या थे? इक्विलिब्रियम थे. जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया तब तो इक्विलिब्रियम नहीं है, फिर भी हम रेशियो तो निकाल ही सकते हैं. मान लीजिए हमने सिर्फ A और B से स्टार्ट किया, C और D स्टार्टिंग में नहीं है, तो C और D की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो उस टाइम पे सिमिलर रेशियो, similar to what? Kp and Kc, that known as what? Reaction quotient. Kp and Kc depends only on temperature, but Qc or Qp actually dependent on concentration at that particular moment. किसी मोमेंट पे आपने स्टार्ट किया रिएक्शन को और मुझे C, D, A और B के वैल्यू पता है, तो Qc की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, Qp की निकाल सकते हैं. एट इक्विलिब्रियम Qc इक्वल टू Kc हो जाएगा, Qp इक्वल टू Kp हो जाएगा. प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम t. तो कोई रिएक्शन दिया हुआ है,
किसी टाइम टी पे आपने क्यूसी निकाला, सबकी वैल्यू मान लो आपको बस पता है, सब क्यूसी निकाला, अगर क्यूसी लेस देन केसी हो जाए तो नेट रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स राइट एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, सोचिए खुद से। किसी भी मोमेंट पे, मोमेंट मान लेते हैं टी इक्वल टू 0 था, ये मान लीजिए ए मोल्स है, ये मान लीजिए बी मोल्स है, या मोल्स की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन, तो ए मोलैरिटी है, बी मोलैरिटी है, और ये 0 0 है, तो क्यूसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रेज़ टू 0, 0 रेज़ टू सी, 0 रेज़ टू डी अपॉन समथिंग समथिंग। तो क्यूसी बिकम्स व्हाट, 0। क्यूसी अगर 0 हो गया, इट मस्ट बी लेस देन व्हाट, केसी। 1 क्यों, लेस देन केसी ना। क्यूसी की वैल्यू 0 हो गई मतलब केसी से वो कम ही हुआ, केसी से कम हुआ मतलब हमें केसी रीच करनी है। केसी रीच करने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम रीच करनी है। मैथमेटिकली इफ दिस रेशियो बिकम्स केसी, इट मींस इक्विलिब्रियम रीच्ड। इफ लाइक क्यूसी लेस देन केसी, इट मींस हमें क्या कंज्यूम होता दिखेगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होता दिखेगा और सी और डी बढ़ता हुआ दिखेगा। सी और डी बढ़ाना पड़ेगा ना, बिकॉज़ इट इज लेस, तो सी और डी बढ़ता हुआ दिखेगा और ए और बी कम होता हुआ दिखेगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब दोनों में चेंजेस नहीं होगी, उसी को हम क्या बोल देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। लिखा है नेट रिएक्शन शिफ्ट, रिएक्शन दोनों साइड में होंगे, और आपको चेंज कहाँ दिखेगी, रिएक्टेंट साइड में दिखेगी और प्रोडक्ट साइड में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो नेट रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड, मतलब प्रोडक्ट बनेगी। अच्छा मान लीजिए, अच्छा बताओ ए से ऐसा लिखा मैंने, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा रिएक्टेंट क्या है? सर दोनों ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों है। गलत। हमारा मोटिव क्या बनाना है, ए से बी बनाना था, तभी हमने ऐसे लिखा। वो तो रिएक्शन की प्रॉपर्टी है कि बी से ए बन जा रहा है, पर हमारा मोटिव क्या है अगर ऐसा लिखा तो, लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड इज व्हाट, प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? हमारा मोटिव क्या है, बनाना बी, बनाना ए से। तो रिएक्शन की खास बात है कि वो किधर शिफ्ट हो रही है, बैकवर्ड, दोनों हो रही है, और हमारा मोटिव क्या था, पी बनाना। तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, बैकवर्ड का मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो वही अगर टी ग्रेटर देन केसी आ जाए किसी टाइम पे, कैसे होगा कि हमने क्या ले लिया स्टार्टिंग में, हमने ले लिया सी मोल, सी कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, डी ले लिया, ये 0 0 ले लिया, तो समथिंग समथिंग अपॉन क्या हो जाएगा, 0 into 0, दैट इज व्हाट, infinity. Infinity should be always more than what, केसी। ज्यादा हो गया मतलब किधर रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड। so that केसी कम, क्यूसी क्या है, द रेशियो एट एनी टाइम, वही रेशियो क्या बनना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, केसी के इक्वल, तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। बैकवर्ड का मतलब हम कंज्यूम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, यस रिएक्टेंट बनाएंगे। बस इतना ही सॉल्विंग का मेथड है। किसी रिएक्शन का हम क्या निकालेंगे, क्यूसी निकाल लेंगे या क्यूपी निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे किससे, केसी से, और किधर डिसाइड होगा कर लेंगे। किसी टाइम पे अगर क्यूसी केसी के ही इक्वल मिला तो हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। क्वेश्चन देखिए, अब जितने पेज समझाया मैंने आपको, कोई डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है, काउंट कर लीजिए पेजेस और उसको स्किप करिए। यहाँ तक आपने लिखा था प्रूफ करने वाला पार्ट, ये 1 पेज, ये 2 पेज, 3 पेज, 3 पेज है, 3 पेज छोड़ दीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन करिए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन लिखिए क्विक। कौन सा वाला पार्ट स्किप करेगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, जहां तक लिखा था आपने उसके बाद 3 पेज के बाद लिखिए, 3 पेज स्किप करिए। समझ में आ गया ना हार्दिक, Kp इक्वल टू Kc RT रेज़ टू डेल्टा, ये कैसे लिखना है, इन प्लेस ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या लिखना है, कंसंट्रेशन इनटू RT, और प्रूफ हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। यस सर। 3 पेज स्किप करिए, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखिए। ये सब सारी समझ में आ गए। किसी भी का किसी भी टाइम पे अगर कंसंट्रेशन या प्रेशर दिया हुआ है तो हम क्यूसी या क्यूपी निकाल लेंगे, वही क्यूसी को हम केसी गिवन से कंपेयर कर लेंगे या किसी और डेटा से कंपेयर कर लेंगे। अगर वो कम हुआ केसी से तो फॉरवर्ड करा लेंगे, मतलब रिएक्टेंट को कंज्यूम कराएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे।
केसी कम हुआ क्यूसी से तो बैकवर्ड कराएंगे, इक्वल हुआ तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो डायरेक्टली राइट द क्वेश्चन क्विक। Okay. तो जो केसी केपी का एक्सप्रेशन था वैसा ही एक्सप्रेशन क्यूसी क्यूपी का होता है, बट इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, जरूरी नहीं है। सर्ट प्रूफ हो गया? यस सर। किधर शिफ्ट होगा बताओ? सर लेफ्ट नहीं, यस सर लेफ्ट। क्यों लेफ्ट होगा? सर क्योंकि ये आपने वैल्यू तो दी हुई है, तीनों की सेम है, तो सर ये- A2 है तो सर दोनों कट हो जाएंगे एंड देन 1 आएगा, तो Q जब 1 आएगा तो K से बड़ा होगा सर, तो इसलिए वो लेफ्ट में जाएगा ना। Okay, तो KC I gave already. For this reaction, यस सर। for this reaction, QC will be nothing but B raised to सर 1. B raised to 1 into C raised to 1 upon A square, क्योंकि सर 2A है। Yes. सबकी वैल्यू पुट करेंगे 3 into 10 power minus 4, 3 into 10 power minus 4 upon 3 into 10 power minus 4 का स्क्वायर, it should be 1. फिर more than what? KC किधर शिफ्ट करेंगे? Backward. Done? कोई डाउट? No, sir. तो इज वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लिखिए हेडिंग, अगेन इट्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन ही करने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, हमने ऊपर कैलकुलेशन नहीं किया, हमने सिर्फ ये बताया किधर शिफ्ट होगी रिएक्शन। अभी हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, कुछ नहीं, एक बेसिक 3-4 स्टेप्स होंगे जो सभी क्वेश्चंस में फॉलो करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। प्लीज बेटा इस वीक का टारगेट रखिएगा, try to finish the gaseous state exercises. ठीक है? यस So सर। look, okay. तो write the heading calculation of equilibrium concentration of all reactants and products. Question लिखिए. Again procedure will be same. लिखिए.
Okay, done beta question. हेलो निकेत, यस सर, लिख के sir. done। क्वेश्चन डन, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन को, बिल्कुल जो मेथड सिखाएंगे आपको, जो बताएंगे बहुत सिंपल होगा सबसे पहली चीज, और सभी क्वेश्चन में इतना ही काम करना है। केसी गिवन है क्वेश्चन में, टी टेम्परेचर भी गिवन है, इफ टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड कांस्टेंट, केसी विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट, बट क्यूसी कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइम। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ केसी फॉर द, बहुत सिंपल रिएक्शन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल्स है, तो कुछ भी टफ नहीं है, पर आने वाले सभी क्वेश्चंस का मेथड यही होने वाला है। तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम concentration in terms of molarity of CO2, H2O, CO if only CO and H2O are present initially at a concentration. Now CO और H2O के मोल्स नहीं गिवन है, CO और H2O की concentration गिवन है, बट concentration को ही हम लोग concentration और molarity can be written as number of moles upon V if V is constant, concentration is proportional to what? N. नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगी। तो इन प्लेस ऑफ मोल्स वी कैन डायरेक्टली यूज वर्ड कॉन्सेंट्रेशन, एंड इन प्लेस ऑफ मोल एनालिसिस वी कैन डायरेक्टली से वर्ड कॉन्सेंट्रेशन concentration। तो CO and H2 आर गिवन इनिशियली, देखिए CO और H2O का वैल्यू गिवन था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस रिएक्शन जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सबसे पहले लिख दिया हमने बैलेंस रिएक्शन गिवन इन प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप हो गया। तो शुड राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन गिवन इन द प्रॉब्लम, लिख दिया। फिर t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली क्या लिया उन्होंने, लेट इज t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 डिनोट्स व्हाट, इनिशियली और गिवन, दोनों 0.1 है, और सी प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो हमें निकालनी क्या है, t इक्वल टू 0 पे QC निकाल, QC निकाल लिया, 0 into 0 अपॉन समथिंग, क्या मिल गया, वो 0 मिल गया। अगर QC 0 मिल गया मींस KC से कम है वो, तो नेट रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड जाने का मतलब है रिएक्टेंट्स को कंज्यूम करोगे, बिकॉज़ प्रोडक्ट तो वैसे ही 0 है, तो रिएक्टेंट्स कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट बनेगा। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, दोनों थोड़ा थोड़ा कंज्यूम होंगे, प्रोडक्ट दोनों बनेंगे। तो t इक्वल टू 0 पे 0.1 0.1 0 0 ले लिया, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे 0.1 माइनस एक्स, जैसे ये माइनस एक्स किया यहाँ भी माइनस एक्स हुआ, क्यों, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ भी कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से 1 बनेगा, से 1 रिएक्ट करेगा, तो माइनस एक्स का मतलब एक्स कंज्यूम हुआ, तो एक्स से एक्स रिएक्ट करेगा, और CO2 एक्स और एक्स बनेंगे बिकॉज वहां भी 1 कोफिशिएंट है। तो ये सब जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, ऑल दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स will be at equilibrium, will be at equilibrium। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो उसके बाद चेंजेस नहीं दिखेगी, नेट चेंज दिखा दिया हमने कि फॉरवर्ड में होगी, उसके बाद नहीं चेंज दिखेगा। अब इसी वैल्यूज को आप कहाँ पुट कर लेंगे, केसी के एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे। तो केसी CO2 रेज टू 1 कब की कॉन्सेंट्रेशन है, ये इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है, yes, तो x into Yes, x raised to 1 into x raised to 1 upon 0.1 minus x raised to 1 0.1 minus x raised to 1, इसको आप ले सकते हैं x upon 0.1 minus x raised to 2। अब क्या करें, रूट ले लेंगे, तो x upon 0.1 minus x should be equal to root under 4.24, approximate value 2.06 आएगी, 2.06 आएगी। एनसीईआरटी में इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके लिखा है हमने, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली रूट ले लिया, बट क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है वो टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। क्वाड्रेटिक लिया, दो वैल्यू आएंगे उसमें, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, किसी मोल्स में आप नेगेटिव मोल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, no sir, नहीं हो सकता। और ऐसा कर सकते हैं 0.1 माइनस 1 कभी हो सकता है क्या, no sir, क्योंकि वो इंटीजर ही होना चाहिए, 0.1 इज द नेगेटिव नहीं जाना मैक्सिमम ना, 0.1 से ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर चाहिए। सकते। Yes sir, तो दो चीजें नहीं हो सकती, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, x की वैल्यू 0.1 से ज्यादा नहीं हो सकती।
तो x की वैल्यू एग्जैक्टली 0.1 भी नहीं हो सकती। अगर 0.1 हो जाएगा तो CO कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी, जो अलाउड नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम में, सब थोड़ा 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 बचे रहेंगे। तो 2.06 के आसपास आएगा, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0.067 आ जाएगी। अगर x 0.067 है तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 क्या है? 0.067। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 क्या है? 0.067। तो CO का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस x। समझ में आया मेथड? अगेन आई एम रिपीटिंग, you need to write the balance reaction first, then write the initial given values, then check the value of QC, then compare with the KC. If it is less than KC, shift forward में करिए, if it is more than KC, backward में करिए। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसा लिए होते, देखो अगर ये 0 लिए होते, ये 0 लिए होते, ये 0.1 लिए होते, तो यहाँ पे क्या करते? 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या करते? एक्स। समझ में आई बात सबको? yes, यही कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं और फिर केसी में डाल देते हैं, केसी का एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। प्लीज राइट इट, लिखिए अच्छे से। अब नितिन एकमात्र सॉल्यूशन यही है, ओनली दिस इज द सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे सिर्फ, और मेथड यही फ्लो होने वाली है ऑलवेज।
सर केसी के लिए नीचे CO इक्विवेलेंट प्लस H2 इक्विवेलेंट H2O इक्विवेलेंट होना चाहिए ना? क्या बेटा? हाँ, वो सर वो तो जो केसी का यहाँ पे छूट गया होगा किसी एक्सप्रेशन में ना, H2O। यस सर हाँ, छूट गया होगा। मेथड क्लियर हो गया। फर्स्ट राइटिंग द बैलेंस रिएक्शन, राइटिंग इनिशियली T equal to 0, then finding QC, comparing with KC, deciding forward or backward, and then writing T equilibrium and find the value equating with KC or with some other data. Sir, can you scroll up? बिल्कुल। डन सर। Sir, done. ठीक, अब आते हैं लेक्चर 4। इसमें देखिए क्या है, 3-4 लेक्चर हो। सर एक डाउट। क्लास में अगर मैं पढ़ाता तो इतने टाइम लगता। हाँ, नहीं, बस एक ही पूछना था कि लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 2 का क्या मतलब? अरे वो 1-1 घंटे का क्लास में लिया था हमने। ओके ओके। ठीक है, वो Yes. कुछ नहीं है बेटा, पूरा चैप्टर ही क्लास में हो सकता है। सिर्फ केपी के, अभी तक केपी केसी से बाहर निकल पाए क्या आप? जितना हमने पढ़ा अभी तक, किसी भी प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम किया हमने। Yes. उसके पहले जो डेरिवेशंस थी, केसी केपी लिखना, क्यूसी क्यूपी लिखना, फिर कंपैरिजन करना, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ केपी एंड केसी। अगेन फिर से टाइम पास ही है, लेकिन सॉल्विंग में हेल्प करता है। केसी एक्सप्रेशन क्या है? सी रेज़ टू सी डी रेज़ टू, इतनी बार आपके आंखों के सामने आ रहा है। आप चाह कर भी अगर बोलेंगे सर मुझे केसी का फॉर्मूला ही नहीं आता, मतलब आप क्लास में बैठे ही नहीं थे। सिर्फ सुन लेंगे तो ही चैप्टर हो जाएगा, वैसा चैप्टर है ये। तो केसी का एक्सप्रेशन लिखा हमने। नाउ केसी में जो कंसंट्रेशन है, सी रेज़ टू सी डी रेज़ टू डी किया, दैट इज नथिंग बट मोल्स अपॉन वी। तो concentration of A can be written as what? Na upon V. So since the reaction is taking place in a container, so volume for all the components will be same. In place of concentration of C, what we can write? NC upon V, ND upon D. लिख सकते हैं ND upon V, Na upon V, NB upon V लिख सकते हैं। यस
वॉल्यूम को बाहर निकाल सकते हैं, n से रेस टू c, n d रेस टू d, n a रेस टू a, n b रेस टू b into 1 by v c plus d minus a plus b. Now आप बोलेंगे सर यहाँ पे डेल्टा एन जी क्यों लिखा? बिकॉज c plus d minus a plus b क्या था? डेल्टा एन जी. तो डेल्टा जी क्यों लिखा? तो डेल्टा जी इसलिए नहीं लिखा बिकॉज आई डोंट नो वेदर द रिएक्शन इज इन गैसियस और सॉल्यूशन फेज. सॉल्यूशन फेज सिर्फ होगा, गैस नहीं होंगे तो डेल्टा लिखना नहीं है. अगर वो गैस भी होंगे तो डेल्टा जी लिख सकते हैं. तो केसी कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे केसी को हम मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हैं. कोई डाउट? केसी को कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम लोग मोल्स के No, टर्म sir. में लिख सकते हैं. इनटू एक फैक्टर आ जाएगा 1 बाय वॉल्यूम का. अगर c प्लस डी इक्वल टू a प्लस बी हो गया तो केसी को सिर्फ किसके टर्म में लिख सकते हैं? बोलो. केसी को Moles की. देखिए 2Hi डिसोसिएट टू गिव H2 प्लस I2. तो ये कितने हैं? 2 है. इधर क्या 1 और 1? 1 and 1. तो सी माइनस क्या हो जाएगा? बोलो. ये भी 2 हो जाएगा ना. तो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा? 0. 0. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है. और मोल्स में दिए हुए थे तो मोल्स के टर्म में डायरेक्टली आप केसी को लिख सकते हैं. लिखा है मोल्स एट इक्विलिब्रियम. अब आते हैं केपी का. पीवी गुणन आरटी होता है. फिर से वो रिपीटेड है, रिपीटेटिव है. आप देख लीजिए. पीए इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी. और पीए को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? पी टू इंटू एक्स ए. पीटी इंटू एक्स लिख सकते हैं ना. मोल इंटू टोटल प्रेशर. तो वही यहाँ लिखा है. समेशन इनका मतलब हुआ टोटल मोल्स. सिंपल. तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सचर. तो Na अपॉन समेशन n. सिंपल. वो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज व्हाट? मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स. Pa इक्वल टू Pt इनटू XA. XA क्या लिखा? Na अपॉन समेशन n. सिमिलरली Pb, Pc, Pd सब लिख सकते हैं. अब Pa Kp एक्सप्रेशन में हम ऊपर के सभी एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं. तो Pc की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं? P टोटल इनटू Nc अपॉन समेशन n. NC upon summation. सब में वैसे यूज कर सकते हैं. तो कॉमन टर्म क्या रहेगा? पीटी अपॉन समेशन सब में आएगा. उसको बाहर निकाल लीजिए. केपी इक्वल टू क्या आ गया? एन सी रेस टू सी. फिर से मोल्स के टर्म में. जैसे ऊपर केसी को मोल्स के टर्म में लिखा, अभी केपी को मोल्स के टर्म में लिख रहे हैं. इनटू पीटी अपॉन समेशन एन रेस टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी. सिंस इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, दैट सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी कैन बी टेकन एज व्हाट? डेल्टा एन जी. अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो केपी को भी किसके टर्म में लिख सकते हैं? मोल्स के टर्म में लिख सकते हैं. सिंस डेल्टा एन 0 है तो आरटी रेस टू डेल्टा एन क्या हो जाएगा? 1. और केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केसी के इक्वल. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ देखिए पीवी इक्वल टू आरटी होता है तो सिंगल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है, मिक्सचर ऑफ गैस के लिए एप्लीकेबल है. तो अगर पी मेरा पीटी है मतलब टोटल प्रेशर है तो एन की कभी क्या लगना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो पीटी अपॉन समेशन एन टोटल प्रेशर अपॉन total number of moles is equal to what? RT upon V. So in place of PT upon summation n, we can also write RT upon RT by V. RT by सेम चीजें हैं. ये तो हम बताया था. अल्फा अगर परसेंटेज में गिवन हो तो अल्फा क्या होगी? x upon 100. फिर से I will tell you to write at home. यहाँ तक हमने किया 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज. 3 पेज छोड़िए, 2 पेज में ही आ जाएगा एक्चुअली, लेकिन 3 पेज छोड़ दीजिए. अब ये क्वेश्चन ट्राई करिए. लिखिए क्वेश्चन. Skip 3 pages and write this question. Again, it's a very simple problem. Follow the same procedure. Already I gave you the balanced reaction. Sir, we have to solve the PCL 5 wala question now. It's directly question. Write the question and then solve it.
Method is not going to change. Write the equation. Write t equal to 0. Right. Find QC. Compare QC with KC. Definitely, if KC is not mentioned, अगर QC 0 आता है तो KC से वो क्या होगा? छोटा ही होगा. QC infinity आती है तो KC से क्या होगा? वो बड़ा ही होगा. नितिन को टाइम टेबल नया आया ना? Yes, Hello? sir. नितिन थोड़ा बताएंगे क्या टाइम टेबल से एक बार? हेलो बेटा नितिन. सर अभी आपका लेक्चर डेली Yes, हो, sir. क्या? आपका लेक्चर डेली होगा ना? पता नहीं, लिखा तो देख वही देख रहे हैं. डेली तो लगा दिया उन्होंने. यस सर, डेली होगा. डेली है. यस सर. Yes, sir, 1.5 hours daily. टाइमिंग बता सकते हैं क्या एक बार? सर कल 9 to 10:30 होगा. नहीं मुझे एक मिनट को 11 to 7 से 12:30 तक क्लास रखा है लोगों ने ना. आज हमारी क्लास है. आज दूसरी क्लास कौन सी है? PTP circuit 9 to 10:30 and then आगे 12:30 तक ये MNK का. और डाउट्स? Sir, Doubts 1 to 2 doubt solving. आज है? Yes. Yes, sir, लेकिन आज Maths MN का. के सर का. हाँ कोई बात नहीं. Doubts. कल का शेड्यूल बताओ. सर कल 7 to 8:30 आपका लेक्चर है. हाँ. फिर 9 to 10:30 बायो या मैथ्स है. 11 to 12:30 पीटीबी सर का है और 1 to 2 पीटीबी सर का डाउट सॉल्विंग सेशन है. अच्छा मगर डाउट्स को ऐसा रखा है. ठीक. वेडनेसडे को? सर 19 ना. फर्स्ट लेक्चर मैथ्स है. सेकंड 9 to 10:30 पीटीबी सर का है. 11 to 12:30 आपका है और फिर 1 to 2 आपका डाउट सॉल्विंग है. और यही 3 दिन फिर से रिपीट हो जाएगा. Yes sir. है ना? डे ही होगा फिर से रिपीटेड. हाँ सर यही रिपीट होगा. यार कैसा खराब सर टाइम. 20 को डाउट सॉल्विंग नहीं है, किसी का भी नहीं है. नहीं नहीं, सर पीटीबी सर का. 3 दिन डाउट्स होंगे, 3 दिन डाउट नहीं होंगे. यही मैक्सिमम होगा. सर आज 11 to 1:30 बायो का लेक्चर है. अच्छा मैथ्स एंड बायो दोनों होंगे. यस सर. 11 to 1:30, 11 to 12:30 ना? नो सर 11 to 1:30 लिखा है. सर बायो वालों के लिए 1:30 तक है और मैथ्स के लिए 12:30 तक एंड देन 1 से 2 तक डाउट सॉल्विंग है. बेसिकली 11 to 2 लेक्चर है और कुछ नहीं जो पहले होता था. यस सर. हाँ सर 11 to 2. वही. वेडनेसडे को बायो है. वेडनेसडे को बायो है बायो वाले का.
देखो बायो वाले कौन कौन से दिन है, मंडे को है, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को भी है। देखिए अश्विनी देखो बेटा, सर 19th को एक सेकेंड सर। नहीं आज तो है 7 बायो, आज है, कल भी बायो है, हाँ हाँ कल सर भी, कल भी है। और वेडनेसडे को। हाँ सर वेनेसडे को भी है 7 to 8:30 बी के आई मैम। हाँ, वही किया उन्होंने। और फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। एक सेकेंड सर। हाँ सर बोलिए सर। सर बायो एवरीडे है। हाँ एवरीडे हर सब्जेक्ट है, तो टाइमिंग वही है ना, वही रखा हुआ टाइम, वैसे तो अलग तो टाइम तो नहीं है। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी बायो का सेम टाइमिंग है जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का है, वही हाँ होना चाहिए। सर और 20 को बायो का है सर 9 to 10:30। 17 18 19, नहीं थर्सडे को कैसे, थर्सडे को चेक तो नहीं, 20 को नहीं होगा। थर्सडे कौन सा दिन हुआ, थर्सडे इज 20। थर्सडे को 11 to 12:30 है ना, थर्सडे चेक करिए। यस सर। थर्सडे बायो कितने बजे है, 11 to 12:30 ना। सर 9 to 10:30 लिखा है। थर्सडे का टाइम बताओ, थर्सडे का टाइम बताओ। सर थर्सडे 7 to 8:30 आपका लेक्चर है, फिर हाँ 9 to 10:30 बायो या मैथ्स है, 11 to 12:30 पीटीबी सर का है, और फिर 1 to 2 डाउट सॉल्विंग है पीटीबी सर का। थर्सडे को। यस सर 20 ना। अच्छा, मतलब मंडे की जैसा शेड्यूल नहीं है। नो सर। एक मिनट, फ्राइडे को बताइए दो 21 का। 7 to 8:30 आपका लेक्चर है, 9 to 10:30 पीटीबी सर का, 11 to 12:30 बायो या मैथ्स है, और 1 to 2 डाउट सॉल्विंग है मैथ्स सर का, नवीन सर का। अच्छा, और सैटरडे। सेवन सर टू 7 to 8:30 8:30 मैथ। मैथ्स, 9 to 10:30 पीटीबी सर का, 11 to 12:30 आपका, फिर 1 to 2 आपका डाउट सॉल्विंग। ओके, सर सैटरडे को बायो भी है 7 to 8:30। हाँ हाँ वो बायो रहेगा, मतलब थर्सडे मंडे ऐसा नहीं है, थर्सडे मंडे ऐसा नहीं है, थर्सडे फ्राइडे ऐसा। थर्सडे को थर्सडे इज नॉट सिमिलर टू थर्सडे, सिमिलर टू ट्यूसडे। ओके ठीक, मतलब वी डोंट हैव एनी स्कोप। पहले का कितना अच्छा स्कोप था, तो क्लासेस के नंबर ऑफ आवर्स भी ज्यादा थे, और रहने दीजिए, ठीक चलेगा। क्वेश्चन सॉल्व हुआ किसी का ये वाला, करिए सॉल्व। कुछ नहीं है, कोई सॉल्विंग नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के टर्म में डील करना है। मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में चेंजेस नहीं होगा अनटिल अनलेस थर्मोडायनामिक्स लाएंगे। इफ आई डोंट कीप थर्मोडायनामिक्स तो सब में एक ही काम करनी है।
हो गया बेटा नितिन, क्लियर हो गया? नो सर कर रहा हूँ। हो सर कर रहा हूँ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था बेटा, 2 मिनट का ही काम है। सोचो ना, PCl5 PCl3 प्लस Cl2 है, तो T इक्वल टू 0 पे क्या लिखोगे? PCl5 कितनी मोल्स है? 1 One. PCl3 सर Cl2 ये वाला सॉल्व One. करने का था। तो कौन सॉल्व करना था? सर वो ऊपर वाला जो कर था वो कर। ऊपर का क्या था? सर वो ब्लू वाला। वो तो कर ही लिया हमने ना, 12 निकाला था ना। Kp इक्वल टू क्या होता है? Kc यस RT। अरे ऊपर किया था हमने डिस्कशन ये, डेल्टा एनजी। तो Kp Kc कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज़ दे आर सेम। तो RT रेज़ टू डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? सॉरी 0 सॉरी 0। 0 नहीं रहेगा 1 रहेगा। तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो T 1 इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय आर 1 बाय 12 केल्विन। तो किया हमने 1 मोल ऑफ PCl अश्विन पूछे भी थे 1 ये करना है। चलो 2 मिनट और ले लो, करो कंप्लीट फटाक से, 2 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब आप लोग 7 to 12:30 पैक्ड है। If I want to keep any class also, I can keep only in afternoon. सर आफ्टरनून भी CS और इंग्लिश यस सर वो 5 o'clock के बाद ही होगा सर। Every day? यस सर। यस सर। मतलब आप लोग की जिंदगी खराब हो गई मतलब कंप्लीटली, है ना?
जो लोग बात किया करते थे कि सर पढ़ने को टाइम नहीं मिल रहा है, अब नितिन निकाल के दिखाओ टाइम, बताओ। सर मिल जाता है। सोचो अभी मिल जाता है, तो जब पहले क्लासेस ही नहीं होती थी, ज्यादा 3 क्लास होती थी वीक में और नंबर ऑफ आवर्स भी कम होते सर थे, सब और ज्यादा मिलता था। क्या? तो वही मैं कह रहा हूँ, तभी होमवर्क दिया करता था कभी कभी, तो बोलते सर टाइम नहीं मिला सर, थोड़ा ये बनाता रह गया, वो रह गया। तो भी हर दिन 5 बजे तक लेक्चर है, एवरीडे। सर मतलब हर सर रोज alternate 5 day बजे होता तक है, नहीं होता। 4 यस सर। नितिन ये भी थोड़ा हेल्प कर दो, किसके दिन होता है बताओ, लिख तो लो अपने पास, नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, परेशान मत होइए, कभी जरूरत पड़ा तो। देखिए शेड्यूल में, नहीं परेशान करेंगे, उतना परेशान नहीं करते, कभी कभार। थर्सडे ऐसा क्यों कर दी, ठीक है। नहीं मिला नितिन? सर 20 और 22 को इंग्लिश है, 2 से 3 o'clock। एक मिनट 20 और 21 को, 22। 20 एंड 22 को, और बस इतनी दिन सर है। आगे का टाइम टेबल नहीं आया, अब मैं आपको ईएम का बताती हूँ। हाँ, सर 18th को भी इंग्लिश है। आप लोग इंग्लिश इतनी अच्छी है, फिर मुझे बताइए। 18, 20, 22 सर 17, 19 और 21 को ईएम है, और बाकी का सीएस होगा उससे दिन 3 to 5। कोई चांस नहीं है, सिंपल सी बात ये है ना हार्दिक, कोई चांस नहीं है, यस सर। आपको कुछ चांस नहीं मिलने वाला सर। अब संडे को लीजिएगा, बहुत पढ़ा रहे हैं आप। संडे को टेस्ट संडे, सैटरडे और यस संडे सैटरडे और संडे को। नहीं संडे को सुबह 7 बजे से 6 बजे से, कभी 6:30 बजे सर से। नहीं सर, एक दिन होता है सर। एक दिन तो माफ करिए सर, नहीं हम नहीं लेंगे बेटा कभी, जो है अब जैसे अभी गैसेस से थोड़ा पीछे था, तो कवर अप करने के लिए आपकी फ्राइडे रखी, हर दिन कहाँ रखी थे, कभी कभार जरूरत पड़ी तो, ऐसा तो कुछ मतलब नहीं है। और 3 to 5 सबका लेक्चर है ना, कि इंग्लिश भी 3 to 5 ही है? इंग्लिश 250 to 350। इंग्लिश क्या है? 250 to 350। अच्छा, इंग्लिश का टाइमिंग अलग है, यस सर। यस और ईएम का 3 to अलग। तो वो 3 to 5 होता है। सर 19th और 21st को साइकोलॉजी है, 3 to 5। 19 और, हाँ मतलब तो साइकोलॉजी में लिया आप लोगों ने? सर ऑप्शन में नहीं था सर, सीएस और ईएम। सर बायो स्टूडेंट्स को ऑप्शन है। अच्छा है, वो आसान होगा फिर तो। 215 टू, इंग्लिश का 215 to 350 ना? यस सर। यस 250 to नो सर 350। 250। 350। सर 55। 50। 215 to 250। सर 250, 250 to 350। 250 Sir, to approximately 350। 3 to 4, sir. 10 to हाँ। Sir, approximately 3 to 4 years. 3 to 4, ओके। Yes, sir. आपकी जिंदगी हो गई है क्या, क्या बोलते हैं? खराब। नरक या जहन्नुम। सर बहुत कुछ है। चलिए ठीक है, नहीं ये डिसिप्लिन लाइफ है आपकी, होनी चाहिए हमेशा ही, मैंने बदल जाएगा। अब आप लोग सब वैक्सीन ले लीजिए, तो ऑफलाइन खुलेगा, फिर सबका वही 3-3 घंटे का क्लास में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, पहले इनिशियल, अब देखना प्रोसीजर देखो, सबसे पहले क्या लिखा हमने, बैलेंस रिएक्शन, गिवन इन द रिएक्शन, हम खुद से बैलेंस नहीं करेंगे,
जो बैलेंस गिवन है, बिकॉज खुद से करेंगे तो कोफिशिएंट बदल जाएगा, और कोफिशिएंट बदल जाएगा तो केसी भी बदल जाएगा, बिकॉज वी हैव रिटन if a reaction is multiplied by some constant, the equilibrium becomes what? Kc raised to n. पॉइंट पढ़ा था हमने. 1 माइनस अल्फा क्यों लिखा? वो अल्फा का डेफिनेशन ही क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल टेकन. तो 1 मोल लोगे तो कितना टूटेगा? अल्फा टूटेगा. अल्फा 1 माइनस अल्फा हो गया. अगर अल्फा टूटा तो बनेगा कितना रिएक्टेंट्स? 1:1 का रेशियो है तो अल्फा अल्फा बनेगा. तो क्यूसी की वैल्यू निकाला हमने, तो 0 into 0 upon something that is less than kc किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड. तो माइनस अल्फा किया हमने. कंसंट्रेशन क्या होगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन v. कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है. केसी की Yes. एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर दो तो आपको सिंपलीफाई होकर रिजल्ट आ जाएगा. ऑल्टरनेटिवली केसी कैन बी आल्सो रिटन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मोल्स एंड सेपरेटली वॉल्यूम. वॉल्यूम सेपरेटली वॉल्यूम. तो मोल्स इनटू समथिंग. तो मोल्स पता ही था मुझे. 1 माइनस अल्फा अल्फा पुट किया और 1 by v रेज़ टू समथिंग 1 + 1 - 1 तो डायरेक्टली आ गया. तो केसी निकालने के लिए कंसंट्रेशन यूज करिए या तो मोल्स के टर्म में डायरेक्टली डील कर सकते हैं. समेशन एन क्या होगा? सबके मोल्स को ऐड कर दीजिए. 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा. टोटल प्रेशर P था. डेल्टा एन जी क्या है? Cl2 का 1, PCl3 का 1, Cl5 का 1. 1 + 1 - 1 1 Kp निकाला. Kp का फॉर्मूला पुट कर दिया मोल्स के टर्म में, बिकॉज मोल्स का टर्म मुझे जब पता ही है तो पार्शियल प्रेशर क्यों निकालूं? निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी, बट हमने मोल्स के टर्म में डेरिवेशन लिखा था. तो मोल्स पुट कर दिया, Pt अपॉन समेशन एन सब पुट कर दिया. फाइनली एक्सप्रेशन आ गई. मैंने क्वेश्चन दिया भी इन अबव प्रॉब्लम फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस एट इक्विलिब्रियम. तो पार्शियल प्रेशर क्या लिखेंगे? Pt इनटू मोल फ्रैक्शन x PCl5 इक्वल टू मोल्स अपॉन समेशन एन. PCl5 का मोल्स अपॉन समेशन एन इनटू टोटल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर वही होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर. और फिर इन तीनों को आप कहाँ यूज कर सकते हैं? Kp में यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में. यहाँ पे हम Kp का मोल्स फॉर्मूला यूज किया. अगर हमने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया तो कैन यूज इन व्हाट? Kp के पार्शियल प्रेशर के एक्सप्रेशन में. ये सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा विदाउट एनी सॉल्यूशन. बुकलेट के ही हैं, नहीं बुकलेट के नहीं है. सर आपने नोट्स अपलोड कर दिए. हाँ सर, अपलोड किया हुआ है ना बेटा. सर बट जो नोट्स आपने डाले उसमें कुछ पॉइंट्स जो हमने अभी लिखवाए थे वो नहीं थे उसमें. ये तो अपडेट कर दूंगा ना, उसमें अपडेट कर दूंगा. वो अपडेट कर देंगे, उसमें टेंशन नहीं है. यस सर. हाँ, यहाँ तक पेज नंबर 28 तक कंप्लीट कर लीजिएगा. क्वेश्चंस ही हैं, 1-2 लाइन लिखे होंगे लेकिन क्वेश्चंस ही हैं. समझ में आ गई बात? यस सर. Shall we repeat again? Yes, What are the all the Yes, problems? sir. First, write the balance reaction. Second is T equal to at 0. equal to 0 and Then find find QC or QC. QC or QP. Both. If concentration term is given, then you find QC. If pressure term is given, find QP. Then compare with KC or KP. If it is less than KC or KP, net किधर करानी है? Forward. More than KP or Forward. backward. फिर लिखना है जो आपने T equal to equilibrium पे लिखा equivalent. तो KC और KP में डाल दे. अननोन क्वांटिटी निकाल लेते हैं. सर मतलब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का लिखना है. क्या बेटा? टाइप्स ऑफ हाँ, इक्विलिब्रियम लिखो ना. बिफोर फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं है बेटा. होमोजेनस हेटेरोजेनस, हाँ वहां तक लिखना है. ठीक है सर. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या लिखा है कि रिएक्शन में सभी अगर गैस है, सभी लिक्विड है, सभी सॉलिड है तो होमोजेनस बोल देंगे. अगर कुछ सॉलिड कुछ गैस है तो क्या बोल देंगे? हेटेरोजेनस. Heterogeneous. तो कुछ है नहीं. यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. आई थिंक नेक्स्ट क्लास So ये states of matter का ही continue है. नहीं अलग चैप्टर है. केमिकल इक्विलिब्रियम अलग चैप्टर, अलग है, अलग. ठीक है. Yes. लर्निंग इतनी है बेटा, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एक ही मेथड है, बार बार यूज होगी. कितने सारे प्रॉब्लम बनाएंगे आप, सब में एक ही करना है. तो ये दिमाग में फ्लो सेट हो जाना चाहिए. चल ठीक, ओके. कल मिलते हैं क्लास. इसको ऑलमोस्ट खत्म ही कर लेंगे कल तक. सर कल तक चैप्टर खत्म हो जाएगा. हाँ कल थोड़ा बहुत बचेगा तो परसों खत्म हो जाएगा. सर बहुत छोटा है सर. हाँ छोटा चैप्टर है. इसके बाद आने वाला जो चैप्टर है जो इस पे बेस्ड है, आयनिक इक्विलिब्रियम, वो बहुत बड़ा चैप्टर है. ओके सर. ठीक. बाय सर. Thank you sir. Bye थैंक sir. यू सर.